Good morning, dear students. Today we are here with our economic topic, that is Chapter 7 Indian Economy Part 4. So, in last part, we have discussed about Indian economy after independence. के independence के बाद हमारी Indian economy की हालत क्या थी? And then we have seen the characteristics of Indian economy as a developing nation, right? हम इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे थे. In that we have discussed the first part, that is first point, that is growth rate, right? So we'll continue with that, but before that एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में. We have learned from the very first part of this chapter, that is all about the ancient India, right? हमने थोड़ा हिस्ट्री रिवाइज किया कि हिस्ट्री क्या थी, हमारा इंडिया एक पास्ट हिस्ट्री में कैसा था, right? We have seen that India is a golden bird, right? और कहीं ना कहीं all the countries of the world wants to deal with India, right? Or we can say कि कहीं ना कहीं they want to business with India. Okay, and with that motive, many of the foreign countries have had entered in our country, and they try to have a good business with us. But then after कहीं ना कहीं एक लालच कह लो या कुछ भी कह लो, right? इंडिया की जो prosperity थी in all the terms, in terms of wealth, in terms of agriculture, in all manner, right? They attracted with that so much, and उसे ruined करने की कोशिश हुई. So वो एक टाइम था when our Indian economy was at the highest way, we can say. But फिर ऐसा एक टाइम आया कि हम सडनली शायद जब हम एक डेवलपिंग नेशंस अंडर डेवलप्ड नेशंस में आ गए, धीरे धीरे हम डेवलपिंग नेशंस, so we have a great journey of economy. In terms of economy we can say हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे इकोनॉमिक्स में, राइट? इंडियन इकोनॉमी में we can say. ओके हमने फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत कुछ देखा, बट इवन हम आज के अगर आज के इंडिया को अगर कंपेयर करें उस वक्त के इंडिया के साथ विद व्हेन ब्रिटिशर्स वर देयर इन आवर कंट्री एंड हाउ दे रूइंड आवर कंट्री, तो उस हिसाब से वी हैव ग्रेट अचीवमेंट्स अगर कहे तो, कि काफ़ी हमने एक अच्छी मेहनत की है इस डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए, बट still required a lot to go, right? So let's start it with the characteristics of Indian economy. That is के Indian economy की characteristics हम study करते हैं. Let's see, we have learned one, that is a growth rate. Yes, we are studying, that is characteristics of India as a developing economy. Okay, कि हम अपनी country को developing country कहते हैं, तो कौन से sense में कहते हैं, इसके characteristics क्या है? Second one is changing share of various sectors in national income and employment. So try to understand this point, that is ke changing share of various sectors in terms we are talking here, that is we have learned the three occupational structure, or I can say the three occupational sectors, right? That is the primary, secondary and tertiary sector, or we can call it as agricultural sector, then comes industrial sector, and the third is service sector. Okay, तो हर एक सेक्टर का कहीं ना कहीं नेशनल इनकम और उसके एम्प्लॉयमेंट में शेयर रहा है, बट ये जो शेयर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा चेंज होता रहा है. जैसे अगर हम पास्ट इंडिया की बात करें, हिस्ट्री के वक्त की बात करें, तो our country was the agricultural country, right? और agrarian country कहते हैं, तो maximum I can say 60 to 70% of India's population led to agricultural sector. Then after development होने लगा इंडस्ट्रियल सेक्टर आया, right? So बहुत सारे move ऑन हुए टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ गिने चुने ही ऐसे लोग हैं जो वी कैन से द रिचेस्ट पर्सन हु हैव देयर ओन इंडस्ट्रीज एंड रनिंग लाइक रिलायंस एंड टाटाज एंड बिरलाज एंड इन सच मैनर, but the maximum contribution we can say is it goes to the service sector.
सो अब ज्यादातर सर्विस सेक्टर में मूव ऑन कर रहे हैं, सो दैट इज वी कॉल द चेंजिंग शेयर्स, राइट, के डेट टाइम टू टाइम जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आता रहा, वैसे वैसे वेरियस सेक्टर्स में भी चेंजेस आया इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सो लेट्स रीड इट आउट. As a nation starts developing, the contribution of its industrial and service sectors in national income and employment increases. नो डाउट एग्रीकल्चर का भी अगर हम पास्ट रिकॉर्ड से कंपेयर करें तो वो भी इंक्रीज हुआ है, बट सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट वी कैन एबल टू सी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर्स. ओके, बट कहीं ना कहीं पॉपुलेशंस का जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चरल था एज अ एग्रीकल्चर, जैसे मैंने कहा कि 60 to 70% पॉपुलेशन उसमें लेड करती थी, वो कम हुआ. ओके, so it means that now people have to depend less on their traditional sector, that is agriculture, and with improvements in technology and capital formation, they get employment in the relatively more productive sectors. सो जैसे जैसे डेवलप होता गया हमारा नेशन, उनका कंट्रीब्यूशन, उनके डेवलपमेंट के हिसाब से हम मूव ऑन हुए फ्रॉम एग्रीकल्चर टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर. सो वी कैन से दैट नाउ पीपल आर लेस डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है, बट the thing we need to understand that is agriculture is as important as the industries or service sector, because the thing is that we have extreme or explosion of population, or as I have told you that we are second in world's population, right? So हम maximum industrial sectors से related या हम technologists कहीं ना कहीं we are importing from other countries. तो हमारे पास प्लस पॉइंट ये है दैट वी हैव द जियोग्राफिकल कंडीशन, राइट. हमारे पास इतनी जमीनें, हमारे पास वो वैसी लैंड है जहाँ मैक्सिमम एग्रीकल्चर पॉसिबल है. सो अगर ये दिन आ जाए कि भाई हमें एग्रीकल्चर जैसे प्रोडक्ट्स भी बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करने पड़े, तो फिर दैट वुड बी रियली वर्स्ट साइट ऑफ इंडिया, राइट. तो इसीलिए ये जरूरी है कि भले हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर में मूव ऑन कर रहे हैं, बट साथ में हमारा एग्रीकल्चर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, राइट. अदरवाइज हम देख रहे हैं कि ऐसी बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज या बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो काफी हद तक इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स में आगे है, बट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दे नीड टू बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट. सो हमारे जैसी कंट्री जो जिसमें पॉवर्टी या ऐसे सारे इश्यूज बहुत ज्यादा है, अगर वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाहर की कंट्री से बोरो करेगी, आई मीन इम्पोर्ट करेगी, तो वो काफी कॉस्टली हो जाएगा. तो सर्वाइव करना पॉवर्टी या पुअर पीपल के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. ओके, नो डाउट हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और कैपिटल फॉर्मेशन में, बट एग्रीकल्चर इज एज इम्पोर्टेंट एज दिस ऑल. ओके, सो as we are developing in technology और capital formation, right, जैसे जैसे capital formation भी होता जा रहा है, capital in terms of we can say investments बढ़ते जा रहे हैं, so ऐसे industries और वो सब जो developed हो रहा है, तो employment भी relatively generate हो रही है, right, हर एक productive sectors में. So industrial sector and service sector. India's service sector has started growing significantly after the reforms of 1991. तो अगर हम इंडिया सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर इंडिया में बहुत हद तक बहुत आज डेवलप्ड है और बहुत हद तक आगे बढ़ा जब 1991 का रिफॉर्म शुरू हुआ, राइट. उसके बाद से सर्विस सेक्टर में काफी improvement we have seen. Okay, the following table show the increasing share of industrial and service sectors in national income and employment. तो अब हम आगे जो टेबल स्टडी करने वाले हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे पहला एक वक्त था जब एग्रीकल्चर का शेयर इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा था. देन अब उसका शेयर इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा शेयर कौन दे रहा है, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर टू नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट. सो वो हम टेबल में स्टडी करेंगे कितना चेंजेस आया. वी ऑब्जर्व दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम हैज डिक्लाइंड ओवर द इयर्स. ऑब्वियस है कि एग्रीकल्चर को छोड़ छाड़ के पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में मूव ऑन कर रही है, तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो काफी हद तक डिक्लाइन होता जा रहा है ओवर द इयर्स, और वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स में काफी इंक्रीज हुआ है. So look at the table here given. Here it's given the share of various sectors in national income, NI. ठीक है.
एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज देख लेते हैं, यानी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज वी कैन से. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज एंड अदर सर्विसेज, जिसमें हम एक्सक्लूड कर रहे कंस्ट्रक्शन को. ठीक है, एक्सक्लूड यानी कंस्ट्रक्शन इसमें इंक्लूड नहीं किया है. सो 1950 से लेकर 2015 तक का हम चेंज देखते हैं कि सबसे पहले 50 टू 51 में एग्रीकल्चर का शेयर नेशनल इनकम में या कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में था 53.1%. राइट. उसको अगर हम इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का शेयर हुआ करता था इन 50 टू 51 ईयर. यू कैन सी इंडस्ट्रीज इज ओनली 16.6 एंड सर्विस सेक्टर इज ओनली 38.3. अब 90 टू 91 में देखो तो 50 टू 51 में 53.1 जो शेयर था, वो कंट्रीब्यूशन था, वो सीधा डिक्लाइन होके हो गया 29.6. यू कैन सी द डिक्लिनेशन. राइट. इंडस्ट्रीज यू फाउंड कि वहां पे ग्रेट हाइक आया. राइट. 16 से लेकर सीधा 27.7 पे पहुंच गया. एंड इवन यू कैन फाउंड कि सर्विस सेक्टर भी काफी आगे बढ़ा, दैट इज 42.7. हाईएस्ट गोज टू सर्विस सेक्टर. अब आगे जाता है 2001 में. पहले 53 रहा था, हाईएस्ट रहा एग्रीकल्चर. फिर 90 टू 91 में डिक्लाइन हुआ टू 29.6 और डिक्रीज होता गया टू 22.3. नाउ कंपेयर इंडस्ट्रीज, देखो इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट सेम जा रहा है. राइट. 90 टू 91 और 2000 टू 2001 में 27.3. बट सर्विस सेक्टर यू कैन सी ये बढ़ता ही जा रहा है. राइट. पहले 30, फिर 42 एंड देन 50.4. ओके. नाउ 14 टू 15 का ईयर देखते हैं. एग्रीकल्चर देखो और डिक्लाइन हो गया. इट्स ये ईयर बाय ईयर वी कैन से कि डिक्लाइनिंग होता जा रहा है. राइट. तो 17.6 पर आ गया है. इंडस्ट्रीज 27 से थोड़ा इंक्रीज हुआ, दैट इज 29. और सर्विस सेक्टर यू कैन ऑल्सो सी के ये तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही हो रहा है. तो ये हमें कहाँ से सर्वे मिल रहा है? वी आर गेटिंग ये सोर्सेस, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? दैट इज फ्रॉम द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 से. ओके. सो वी ऑब्जर्व दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम हैज डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स. तो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो डे बाय डे या ईयर बाय ईयर बहुत ही डिक्लाइन होता जा रहा है. और वहीं इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड हुए हैं. द थर्ड पॉइंट इज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम मैंने आगे भी समझाया है. राइट. पर कैपिटा इनकम यानी एक पर्सन की इनकम कितनी होती है. राइट. अगर हम नेशनल इनकम के कंट्रीब्यूशंस में देखें. ओके. सो दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. नाउ लेट्स लर्न इट. The per capita income of India at constant prices in 1950 to 51 was 7,114, which increased to 39,904 in 1314. 50 to 51 में 7,114 था पर कैपिटा इनकम. ये इंक्रीज होके हो गया 39,000 टू 904. Thus in a period of 63 years, तो ये कितना गैप हुआ 50 से लेकर 13 और 14 ईयर, यानी 63 इयर्स के पीरियड में पर कैपिटा इनकम अप्रोक्सीमेटली 5.6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. यानी नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट जैसी स्थिति है, वी आर फेसिंग दैट, बट पर कैपिटा इनकम का जो मतलब एक बंदे की इनकम का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, ये 5.6 टाइम्स बढ़ा है. दैट मीन्स के लोग कमा रहे हैं. Okay. Between the periods from 50 to 51 to 90 to 91, it increased by about 1.6%. इन years के बीच में 1.6% बढ़ा, while 19 to 91 के बाद ये बढ़ता ही जा रहा है, that is 5.5%. Okay. We observe that the share of agriculture in the employment has declined over the years and that of, तो यहाँ पे भी सेम इशू है कि शेयर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर का है ये तो कहीं ना कहीं डिक्राइव, ये सेम सेंटेंस यही है. ठीक है कि पर कैपिटा इनकम में भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन हुआ है और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स का शेयर काफी हद तक बढ़ा है. नेक्स्ट कम्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब हमारी कंट्री में कितना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो हमने आगे स्टडी किया अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने प्राइमरी,
सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स देखें, प्राइमरी दैट इज वी कॉल एग्रीकल्चर, सेकेंडरी दैट इज वी कॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शरी दैट इज वी कॉल सर्विस सेक्टर। यही आता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि यही तीन में हम डिवाइडेड है। या तो कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, या कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है जैसे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और व्हाटसोएवर, और या तो कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है। लेट्स लर्न इट। प्राइमरी सेक्टर किसे कहेंगे? दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, डेयरी फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर, और इसमें एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों आ जाते हैं, यानी डेयरी फार्मिंग, फिशरीज एंड ये सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग ले लो, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वेरिंग, राइट, और ये सारी चीज का प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, ये सब कुछ प्रोड्यूस करता है। सर्विस सेक्टर्स में सारी एक्टिविटीज ले लो, जैसे ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन। सो वी हैव नंबर्स ऑफ ऑप्शंस इन सर्विस सेक्टर्स, वी कैन से, ओके। Now let's try to learn the level of employment. तो शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है या कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। टर्शियरी सेक्टर है तो वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। लेट्स लर्न इट। एग्रीकल्चर सेक्टर्स देखो, पहले 1951 में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था, दैट इज 72.1। उसी वक्त अगर 1951 में ही हम इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो वो सिर्फ 10% ही एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, और टर्शियरी सेक्टर 17.3। लेट्स मूव टू 1991। अब 1991 में यू कैन ऑब्जर्व कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, 66.9 हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, दैट इज 12.7, और टर्शियरी सेक्टर तो बढ़ता ही जा रहा है, दैट इज 20.4। नाउ 2001 में यू कैन फाउंड कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट्स और कम होते गए, या लोग अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स में से बाहर आ रहे हैं, या वो एम्प्लॉयड होना नहीं चाह रहे अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, राइट। फॉर एग्जांपल अगर फार्मर्स के बेटे हैं आज, वो पढ़ लिख के वही सोचेंगे कि हम कहीं जॉब करेंगे या हम कोई सर्विस सेक्टर्स में लग जाएंगे, ऑब्वियस है, राइट। सो अब एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2001 देखो तो 56.7 ही जनरेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर 18.1, ये इंक्रीज हुआ। सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 25.2। नाउ 11 to 12 में देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज बाय 48.9, राइट, सॉरी इट्स गोइंग ऑन डिक्रीजिंग मैनर, 72 से 48 की जर्नी है ये। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर यू कैन फाउंड फ्रॉम 10, 51 का अगर हम सिनेरियो ले, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 10, राइट, टू 24.2, एंड 17 यू कैन सी सर्विस सेक्टर्स को देख लो कि ये बढ़ता ही जा रहा है फ्रॉम 17 to 26। सो दिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गेटिंग फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2, ओके। In India, year 1951, the contribution of primary sector in employment was 72.1, that of industrial sector 10.6 and service sector was 17.3, as we have seen in the table, ठीक है। वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे तीनों को कंपेयर किया जा रहा है ईयर वाइज, ओके। आई जस्ट रीड इट आउट, आई थिंक मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वही सब कुछ है। In 1991, the contribution of primary sector in employment was 66.9, इंडस्ट्रियल सेक्टर वही उसी ईयर में 12.7 एंड सर्विस सेक्टर 20.4। 2001 में देखो तो प्राइमरी सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, 56.7, इंडस्ट्रियल सेक्टर 18.2 एंड सर्विस सेक्टर 25.2। और 11 और 12, 2011 और 12 देखें तो प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है 48.9, सेकेंडरी सेक्टर 24.3 एंड सर्विस सेक्टर 26.9, right? So thus we can able to see here that एग्रीकल्चरल का कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयमेंट में वो ईयर बाय ईयर डिक्रीजिंग ओवर द ईयर्स डिक्रीज होता गया है, एंड इंस्टेड इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स का इंक्रीज होता गया है। Thus it is seen that from 1951 to 2011 to 12 the employment has shifted from primary sector to industrial and service sector. Next comes improvement in basic utilities or primary utilities. See, basic utilities में बहुत सारे changes आए. For example,
मैं अगर बात करूं कि एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में आप देखोगे कि पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड था ऑफ एग्रीकल्चर has been changed from the modern equipments, we can say, right? पहले हल चलाया जाता था थ्रू ऑक्स के थ्रू वो हल चलाया जाता था, आज ट्रैक्टर्स यूज किए जा रहे हैं. सो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं. कैसे आए हैं? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज चेंज हुई है, राइट? आज फार्मर्स भी लिटरेट हो रहे हैं. पहले इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो काम करते थे, आज उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पानी मिल रहा है. यानी बहुत हद तक वी कैन से कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखे गए हैं बेसिक यूटिलिटीज में. लेट्स रीड इट. इन इंडिया, your Indian has shown significant improvement in provision of various utilities in the urban as well as in the rural areas like electricity, water supply, roads, irrigation, transport, communication, health, education, and such. This is, we can say, infrastructural facilities. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज किसे कहते हैं? जहां आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब एक बेसिक यूटिलिटीज आपको चाहिए, राइट? तो वो बेसिक यूटिलिटीज कैसे प्रोवाइड होगी? तो ये गवर्नमेंट आपको ये सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है. तो वी कैन से गवर्नमेंट इज गिविंग यू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक है. सो फर्स्ट कम्स इरिगेशन. इरिगेशन में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? वी हैव ऑब्जर्व्ड इरिगेशन इन द सेंस कि पहले ये इशू होता था कि फार्मर्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. बारिश हुई तो उनकी खेती होगी, नहीं हुई तो बेचारे सूखे में रह जाते थे, राइट? बट अब क्या है कि बारिश हो या ना हो, दे गेट वाटर सप्लाई, abundant water supply for their farming. That is we call irrigation. So in 1950 to 51, only 22.6 m hectare of land across the country, right? मीटर हेक्टर. तो 52 to 50 सॉरी 50 to 51 में फार्मर्स के पास इरिगेटेड लैंड कितनी थी? सिर्फ 22.6 हेक्टर जमीन थी. वो आज इंक्रीज होके 63 मीटर हेक्टर्स में कन्वर्ट हो गई है 2012 to 13. यानी हमने एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाई है, we can say. Thus, about 45% of total agricultural land has irrigation facilities in present times. So, we can say कि जितनी भी 45% total agricultural land है, उनके पास irrigation facilities है. अब आता है literacy. The literacy rate which was 18.33% in 2011. लिटरेसी रेट बहुत डाउन था. लिटरेसी यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं, राइट? तो वो 18.33% था 2011 में, आज वो बढ़ के 73% हो गया है, राइट? एंड ये 2013 और 14 की बात करें. फिर अब 1950s की बात करें तो सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज एंड 500 कॉलेजेस विच इंक्रीज्ड to 719 and 35, right, respectively, by 2013 to 14. This indicates rise in higher education. So in short, ये सारे जो भी sources हमें बता रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि किस हद तक अब एजुकेशन या लिटरेसी लेवल बढ़ा है. इलेक्ट्रिसिटी देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बहुत बड़ा है. पहले अगर 50 to 51 के ईयर की बात करें, इट वॉज अराउंड 2300 मेगावाट्स, राइट? जो आज इंक्रीज हो गया है, दैट इज अराउंड 2 lakhs, वी कैन से, राइट? 2,43,000 मेगावाट्स इन 2011 and 12. सो इट लीड्स के वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, इसलिए हम डेवलपिंग इकोनॉमी में आ गए हैं. सो नेक्स्ट कम्स रोड नेटवर्क. In present times, India belongs to the list of the countries with the longest road network. It has approximately 48.6 lakh kilometer of concrete road today. See, we all know that road network plays a very important role for basic transportations, right? जैसे ट्रेड ट्रांसपोर्टेशंस के लिए रोड नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यू ऑल नो कि ट्रक्स और उसके हेल्प से ही ये सब, और रोड नेटवर्क होना बहुत जरूरी है. सो और हमारे पास कॉन्क्रीट रोड्स है अराउंड 48.6 लाख किलोमीटर्स के. तो इंडिया एक ऐसी कंट्रीज के लिस्ट में आती है विच हैव अ लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट कम्स रेलवे. सी, ये जो हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे, रोड नेटवर्क देखा, रेलवे देखा, एंड आगे भी 3-4 पॉइंट्स देखे, इट्स ऑल अबाउट बेसिक यूटिलिटीज. ये हमारी बेसिक जरूरत है,
ठीक है, ये प्राइमरी जरूरत है, ये ऐसा कुछ नहीं कि हम लेविशनेस या लग्जूरियस चीजें हैं, नो, दिस आर, यहाँ पे एयरवेज मेंशन नहीं किया है, क्यों, क्योंकि एयरवेज बेसिक नेसेसिटीज में नहीं आता, ओके। सो रेलवेज देखो, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द फोर्थ लार्जेस्ट टुडे विद अ लेंथ ऑफ 65,000 किलोमीटर। अगर वर्ल्ड वाइड देखे तो इंडिया का नंबर आता है फोर्थ, ठीक है, इंडियन रेलवे नेटवर्क में, और हमारे पास कितनी लेंथ की नेटवर्क है, दैट इज 65,000 किलोमीटर्स। दस इंडिया इज अ प्रोग्रेसिंग फास्ट एंड इज नाउ अ प्रेस्टिजियस इमर्जिंग इकोनॉमी। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट इंडिया काफी हद तक, काफी फास्टली डेवलपमेंट कर रहा है, राइट, काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम एक प्रेस्टिजियस इमर्जिंग इकोनॉमी में आते हैं। तो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैज इंक्रीज्ड। अब पर कैपिटा कंजम्पशन यानी एक बंदा कोई भी कंजम्पशन करता है एसेंशियल कमोडिटीज की, वो भी इंक्रीज हुई है। अगर पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस इज मेड इन एरियाज ऑफ साइंस, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम काफी आगे निकले हैं, रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आगे बढ़ा है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है। जैसे पहले ऐसा होता था कि बहुत सारी डेथ्स होती थी, दैट इज बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, राइट, और हेल्थ इश्यूज तो ठीक है, बट हेल्थ इश्यूज की कोई भी तरीके का हॉस्पिटल, व्हाट वी कैन से कि एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी उन लोगों को। जैसे पहले गांव में छोटे से छोटी बीमारी है तो उसके लिए भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से काफी हद तक डेथ्स होती थी, राइट। जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए या हॉस्पिटल फैसिलिटीज होनी चाहिए वो पहले उतनी नहीं थी। दूसरा कि कहीं ना कहीं अब ऐसा हो गया कि किसी की डेथ एटलीस्ट इसलिए नहीं हो रही है कि उसे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी गई, ठीक है। सो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस हिसाब से काफी हद तक बड़ी है, जो पहले मैक्सिमम डेथ इसकी वजह से होती थी, बिकॉज देयर वर नो सच बेसिक फैसिलिटीज और नो सच हेल्थ कॉन्शियसनेस, ओके। सो वो भी इंक्रीज हुआ है। सो इन द इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम होता है बहुत सारे नेशंस को कंपेयर करना, दैट इज इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, जिसको वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएट किया था 2011 की बात करें। इंडिया वाज आइडेंटिफाइड एज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर यूएसए एंड चाइना। इंडिया को इसमें आइडेंटिफाई किया गया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री यूएसए और चाइना के बाद, while in 2005 इंडिया वाज एट द 10th पोजीशन, ओके। सो पूरे इस चैप्टर से या इंडियन इकोनॉमी से वी गॉट द फैक्ट दैट समवेयर इंडिया इज डेवलपिंग, राइट। हमने जो एक जर्नी स्टार्ट की थी, पहले हम एक वी कैन से वी वर ऑन द स्काई, फिर वापस हम जमीन पे आ गिरे, और फिर से हमने अब अपनी व्हाट वी कैन से कि हमने अपनी उड़ान भरी है, राइट, और धीरे 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 हम फिर से ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। सो डेवलपिंग इकोनॉमी इज समथिंग लाइक दैट। इट्स ऑब्वियसली कि अभी तक हम डेवलप्ड नहीं हुए हैं, बट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपिंग, एंड काफी फास्टली हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। So here we ends our lecture, and obviously we have ended with this chapter as well, right, and hope you understood this chapter very well, because ये कहीं हद तक आप भी इस इंडियन इकोनॉमी के में एग्जिस्ट करते हो, राइट। आपका भी पर कैपिटा इनकम कभी गिना जाएगा, राइट, आपका भी नेशनल इनकम में एक कंट्रीब्यूशन होगा, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड होप कि आप इसे अच्छे से समझे हो। सो विल मीट इन द नेक्स्ट lecture with new topic and new chapter. Up till bye bye, take care all of you.